टॉपिक ऑफ शेयर कैपिटल। इन द लास्ट लेक्चर हमने शेयर कैपिटल के बारे में फुल फ्लैश हम किया था, प्रॉब्लम को सोल्व देखा था, जिसमें हमने फॉरफीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व के बारे में प्रॉपर A1 वीडियो देखी। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिबेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश इन वन शॉट। मीन्स टू से जो इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर विद कंसिडरेशन अदर देन कैश है, उसमें माइनर सा डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम है। उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें याद आने से थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए स्पेशल मैंने सोचा कि इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिबेंचर विद कंसिडरेशन अदर देन कैश टू बी शोड इन वन वीडियो। ठीक है, नाउ जस्ट पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर ले पुराना कि हम सबसे पहले तो हमारे पास वन साइड में है इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिबेंचर। एज यू नो, ये तो आपको सबको पता होगा, ये जो शेयर है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, दीज आर द holders of these shares are the owner of the company, but holder of the debenture means the debenture holders are the creditors or liability holders of the company. Means to say these are the creditors of securities. These are shown as the long-term liability, and these are shown under the shareholder fund. These are the owners of the company, and these are the debenture holders are the creditors of securities. ठीक है, means these are the long-term creditors of the company, long-term debts of the company, debenture holder. ठीक है, पर इनका जो इशू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक करने से पहले थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। इशू ऑफ शेयर, कंपनी शेयर इशू जो करती है तीन तरीके से कर सकती है। मींस टू से एट फेस वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। In the same way, issue of share at par means to say at face value and at premium. par का मतलब क्या होता है? face value का मतलब है अगर कंपनी का शेयर मान लो कि ₹100 का है, यानी कि 100 वाला शेयर 100 में कंपनी इशू करना चाहेगी। लेकिन प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी at premium means to say face value plus premium. Premium means to some extra amount, यानी कि वो कंपनी का 100 का शेयर है प्लस 20% एक्स्ट्रा, and this extra amount will be called premium, and it is called 20% of 100, that is 20, that will be equal to 120. Issue of share at a premium. In the same way, issue of debenture at par, issue of debenture at par means to say at face value, that is rupees at 100, if face value of the debenture is 100, and at premium rupees 100 plus 20, that is 120. और आपने सोचना ये सर ने बताया क्या बताया। अब ये देखो ये आंसर है कि हम इश्यू ऑफ डिबेंचर को तो एट ए डिस्काउंट इशू कर सकते हैं। डिस्काउंट मींस टू से फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, यानी कि 100 का शेयर है और 10% डिस्काउंट है, और मतलब 100 माइनस 10, दैट विल बी इक्वल टू 90। ये है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, दैट इज इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, यानी कि लेस देन फेस वैल्यू। अब हमेशा ये माइंड में याद रखो कि कंपनी कभी भी, अगर मैं यहां से लिखो कि कंपनी कभी भी शेयर जो इशू करती है, इशू ऑफ शेयर मींस टू से अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। कंपनी को कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू करने के लिए, बट देयर इज वन एक्सेप्शन इज देयर।
means to say according to section 53 of Companies Act 2013, according to section 53 of the Companies Act 2013, company can issue share at discount to the sweat equity shares. Sweat equity shares. Discount as the sweat equity shares. And what are sweat equity shares? Sweat equity shares are those shares which are issued to the employees of the company who perform well, who provide the intellectual service to the company and make the helpful in the growth of the company. And as a bonus share, these are issued at a discount to them. When the shares issued to the employees at discount to them, these are called sweat equity shares. Means to say company cannot issue share at discount, but there is one exception, that is issue of share at a sweat equity share. यानी कि अगर बोर्ड में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है can a company share issue at a discount, straightforward answer no, but there is one exception there, write forward this and you will get full marks. ठीक है? Now ये पता लग गया. अब हम करने जा रहे हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इश्यू ऑफ शेयर विद कैश एंड इश्यू ऑफ शेयर विद कंसीडरेशन अदर देन कैश. का मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का, ठीक है, जो पर्पस है वो हम करने जा रहे हैं. जस्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नाउ अब हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर लगा लो, क्योंकि हम ये दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में इकट्ठा करने जा रहे हैं इन वन शॉट. अब ये देखो, ये हमें मालूम है कि शेयर अब या तो कैश में इश्यू होते हैं, इवन टू से डिवेंचर भी या तो कैश के में इश्यू होते हैं या इन कंसीडरेशन अदर देन कैश. Consideration other than cash. And what do you mean by consideration? Consideration is something in return. Something in return के बदले में क्या दिया. कई भी इसका बात क्या होता है कि कंपनी, मान लो कि किसी कंपनी का, एक कंपनी दूसरी कंपनी से कोई मशीनरी खरीदती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को ही खरीद लेती है, ठीक है. एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कोई मशीन, प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी खरीदती है और बदले में पैसे देने की बजाय उसको शेयर इशू कर देती है. दैट इज द केस ऑफ कंसीडरेशन अदर देन कैश. एंड दीस आर द सेम केसेस के बोथ शेयर्स एंड डिवेंचर्स. शेयर्स और डिवेंचर में ये बोथ के दोनों सेम है, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट है. सो वी रेफर बोथ केसेस आर देयर non-mediated with minor differences there. ठीक है. अब हमें पता है कि जो हमारी इश्यू ऑफ शेयर इन कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश का जो टॉपिक है हमारा, अदर देन कैश का जो टॉपिक है, कंपनी कौन कौन से केसेस बनते हैं इसमें. पहला हमारा टॉपिक बनता है इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश टू द वेंडर. वेंडर मींस टू से सप्लायर फ्रॉम whom कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी, एनी बिल्डिंग. देन टू promoters, to underwriters. There are three cases which we will discuss in this lecture. Consideration of share other than cash means to say to the vendor
टू द प्रमोटर टू द अंडरराइटर। ठीक है, अब वन बाय हम इन तीनों को देखेंगे, इसको कैसे करना है प्लीज नोट डाउन इट। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन केस ऑफ प्रमोटर, in case of vendor and in case of underwriter. Now, issue of share to vendor, जैसे मैं पहले बता दिया कि वेंडर क्या होते हैं। Who's are the vendors? Vendors are the persons or the companies or any institution or form of the organization from whom company may buy any type of assets from them. मीन्स टू से हमारे पास कोई भी एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने एक्सवाईजी लिमिटेड कंपनी से एक्सवाईजी लिमिटेड कंपनी से कोई शेयर खरीद लिया, वो मान लो कि कोई मशीन खरीद ली, कोई प्लांट खरीद लिया, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, यानी कि कंपनी की कोई खरीद ली मान लो, उसके बदले में कैश ना या चेक ना देके कंपनी उसको बदले में क्या देती है, शेयर इशू कर देती है। एंड दैट इज द केस ऑफ व्हाट, दैट इज केस ऑफ इशू ऑफ शेयर टू द वेंडर। नाउ इशू ऑफ शेयर टू द वेंडर में हमने क्या करना है, इशू ऑफ शेयर टू द वेंडर, मान लो कि हमारे पास कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी ने एक्सवाईजी लिमिटेड कंपनी को परचेज कर लिया। ठीक है, इन कंसिडरेशन फॉर रुपीज 1 CR, एबीसी लिमिटेड कंपनी ने एक्सवाईजी लिमिटेड कंपनी को खरीद लिया 1 करोड़ में। ठीक है, अब इसकी एंट्री कंपनी क्या डालेगी, हमेशा ये मान के रखो कि जब कंपनी एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है ना, परचेज करती है, तो उसका सारे के सारे एसेट्स एंड सारे के सारे लिबिलिटीज, सारी एसेट्स सारी लिबिलिटी दूसरी कंपनी को शिफ्ट हो जाते हैं जो कंपनी परचेज कर रही है। नाउ हम एक एग्जांपल की लेके इसको समझाते हैं। ठीक है, एग्जांपल है जैसे कि ये हमारे पास है एक्स लिमिटेड कंपनी, एक एग्जांपल प्रॉपर लेके समझाते हैं। जैसे कि एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज an asset worth rupees, purchase an asset worth rupees 1,80,000 from Y limited company, and in consideration other than cash में कैसे करना है, पेमेंट मेड बाय द पेमेंट मेड इन पेमेंट मेड बाय issuing equity shares at face value of ₹100 each। जैसे एक एग्जाम्पल को देखते हैं, करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले कंपनी क्या डालेगी, एसेट खरीदने की एंट्री क्या डालेगी, एसेट काउंट डेबिटेड टू वेंडर, किससे खरीदा, टू वाई लिमिटेड, मींस टू से दीज आर वेंडर, मींस टू से फर्स्ट एंट्री होती है एसेट काउंट डेबिट टू वेंडर, एंड हियर वेंडर इज वाई लिमिटेड कंपनी, दैट इज विद 1 लाख
80,000 being asset purchased and PC due. PC means to say, what is PC? PC is purchase consideration. Purchase consideration means to say जितने का हमारा बैठ के हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो हमारी सेल, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको बोलते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन एंड परचेज पीसी ड्यू। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। जितने में हमने वेंडर को क्रेडिट किया है उतने में डेबिट करके वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 1,80,000 टू, बदले में उसको क्या दे रहे हैं, बदले में उसको शेयर दे रहे हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू क्या बनेगी, जो भी हमारा पीसी ड्यू है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, दैट इज मींस टू से 1,80,000 divided by 100, that is 1,800 shares। ये गारंटी क्या डलेगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर है, 1,800 शेयर इंटू 100। ठीक है, ये हमारी एंट्री डलेगी। ठीक है, और इस एंट्री में हमने क्या करना है, नरेशन लिखना जरूरी होता है। लिखना क्या है, बीइंग डिस्चार्जिंग ऑफ पीसी, यानी कि पीसी की पेमेंट दी जा रही है, डिस्चार्जिंग ऑफ पीसी ड्यू बाय इशूइंग 1,800 शेयर्स एट पार। ठीक है जी, मैंने छोटा मेन प्रॉब्लम है, इसको आगे और करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ देखो ये स्टेटमेंट है, एबीसी लिमिटेड कंपनी परचेज्ड अर्निंग बिजनेस फ्रॉम एक्सवाईजेड लिमिटेड कंपनी फॉर ए सम ऑफ ₹6 लाख, यानी कि एबीसी लिमिटेड कंपनी ने एक्सवाईजेड लिमिटेड कंपनी का रनिंग बिजनेस खरीद लिया 6 लाख के, यानी कि उनका जो बैठ के कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना 6 लाख हुआ, मींस ये 6 लाख क्या है, पीसी परचेज कंसिडरेशन, जिसका बैठ के उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हमने ये बिजनेस इतने का खरीदना। ठीक है, और उनका पेमेंट देने में कैसे नक्की हुआ कि हम 1,20,000 का बैंक ड्राफ्ट देंगे और जो बाकी बचेगा बाय इशूइंग बाय बैंक ड्राफ्ट ऑफ 1,20,000 एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम 20%, और आपको 20% प्रीमियम वाले 10 रुपए फेस वाले के शेयर इशू करेंगे। और बिजनेस में क्या क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी, सन्डी एसेट है, स्टॉक है, कैश है, सन्डी क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन है। ठीक है, यानी कि अगर एबीसी लिमिटेड कंपनी एक्सवाईजेड लिमिटेड कंपनी का बिजनेस खरीद लिया तो उसका सारे के सारे एसेट और सारे के सारे लिएबिलिटीज सारे उसके हो जाएंगे। अब कंपनी सबसे पहले कंपनी एंट्री का डालेगी, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, एबीसी, यानी कि हम जो बनाते हैं ना, ये बुक्स जो बनाते हैं किसकी बनाते हैं, बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, खरीदने वाली कंपनी। एबीसी लिमिटेड कंपनी की फर्स्ट एंट्री क्या डलेगी, बिजनेस खरीदने की। क्या बिजनेस खरीदा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, यानी कि हमने जितने भी एसेट है उसको इंडिविजुअली सिंगल को हमने डेबिट करना है और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देना है। बिल्डिंग को डेबिट, फर्नीचर को डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू बैंक लोन। ये हमारी अमाउंट है 2,25,000, ये हमारा आ गया 50,000, एंड देन वन इज 2,50,000
देन 80,000, 70,000, 40,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर है हमारे 30,000 के एंड देन 20,000। ठीक है, अब हमारा बिजनेस किसी कितने में है, हमारा जो बिजनेस है जो हमने खरीदना है वो कितने में है, वो हमारा 6 लाख में, यानी कि जितने का हमारा बैठ के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो पीसी है वो यहाँ पर डलेगा टू, कौन सी कंपनी है, 2XYZ लिमिटेड, मीन्स टू से दीज आर द वेंडर्स। ठीक है, कितने का, 6 लाख। फिर हमने क्या करना बच्चों, इधर देखो, हमें क्या करना है, इनकी डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करना है। फिर देखो क्या करता है, अगर तो हमारी, मान लो कि हमारी डेबिट साइड छोटी हुई तो हमने गुडविल डालनी है, अगर क्रेडिट साइड छोटी हुई तो कैपिटल रिजर्व डालना है। मतलब कि देखो इधर हमें ये देखना है कि उस बंदे ने जो बिजनेस खरीदा है, यानी कि एबीसी लिमिटेड कंपनी ने XYZ लिमिटेड जो कंपनी खरीदी है उसकी बिजनेस की वर्थ कितनी है, यानी कि उसकी बिजनेस की वर्थ कैसे निकलेगी, बिजनेस की वर्थ निकलने की कैसे निकलेगी, उसकी एसेट में से लिएबिलिटी माइनस कर दो। ठीक है, अब एसेट की वैल्यू देखो क्या है, एसेट की वैल्यू हमारी कितनी है, ये हमारी एसेट की वैल्यू है 2,25,000, ये 3,00,000, 3,80,000, 3,80,000 और 3,00,000, ये हमारे पास होगी 3,01,000 हो गई। ठीक है, एंड 2,25,000 एक हो गई, 3,01,000 हो गई, 2,25,000 एक हो गई, 70,80 1,50,000 एक हो गया एंड 40,000 एक हो गया। ठीक है, कितने की कंपनी खरीदी है हमने, 5, 7, 4, 11, 1, 3, 4 तो 6 हो गए, 6, 2, 8 माइनस लिबिलिटीज, माइनस लिबिलिटीज मान लीजिए ये वाली 50,000 माइनस कर दो इसमें से, ये हो गया 5, 6, 7,65,000। कंपनी की वर्थ है 7,65,000 और कंपनी बदले में उसको कितने दे रही है, कंपनी उसको बदले में 6 लाख का वैट सौदा तय हुआ। ठीक है, 6 लाख की हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हमने कंपनी को एबीसी लिमिटेड XYZ में 6 लाख में खरीदी और बदले में कंपनी कितनी मिली, 7,65,000 की, यानी कि इस कंपनी का क्या है, इस कंपनी को फायदा है, मीन्स से जो एबीसी लिमिटेड कंपनी फायदे में जाएगी। अगर कंपनी की एबीसी लिमिटेड कंपनी में फायदा हो तो उसको क्या डालते हैं, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व, ये हमारा एक बार टोटल भी चेक कर लेते हैं, ये होगा 3,00,000, 2,25,000, 1,50,000 एंड 40, 5, 7, 11, 1, 3, 5, 4, 5, 6, ये 29, यहाँ भी होगी 3, 4, 5, 6, 7 या 715, ये 5, 11 से 5, 6, ये आ गया 6,65,000 का होगा। ठीक है, 6,65,000 की, ये देखो ना 6,65,000 की वाली बिजनेस की वर्थ है और 6 लाख में कंपनी खरीद रही है, यानी कि हमारा 65,000 का कंपनी को फायदा है और उस फायदे को हम कैपिटल गेन समझ के कहाँ डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। अगर मीन्स से यही कंपनी हमने 6 लाख की बजाय 8 लाख की खरीदी होती या 7 लाख की खरीदी होती, और ये कंपनी हमने 7 लाख की खरीदी होती तो क्या होता, यहाँ पर क्या होना था, 7 लाख आ जाना था। और इसकी वर्थ भी चेक करते तो हमारी कंपनी 6,65,000 यानी 35,000 का है, 35,000 कंपनी हमने एक्स्ट्रा दी है और ये हम मान के चलेंगे कि इस कंपनी की गुडविल होगी तो उसमें फिर गुडविल को डेबिट कर देंगे, जो 35,000 का डिफरेंस आएगा ना उसके पीछे गुडविल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे अगर ये वाला केस होता है। ठीक है, 7 लाख वाला केस, मीसो से सीधी कहने की बात है
कि अगर हमारा डेबिट साइड कम पड़ती है टोटल में तो जो डिफरेंस है गुडविल में आएगा, अगर क्रेडिट साइड कम पड़ती है, छोटी पड़ती है डेबिट साइड से, तो हमारा डिफरेंस जो है कहां पर आएगा, कैपिटल रिजर्व में आएगा। इट्स ओके। अब हमने क्या करना है, इसकी कैपिटल रिजर्व आ गया, ये आएगा बीइंग बिजनेस परचेज्ड एंड पीसी ड्यू। अब हमने इसको पेमेंट देनी है, किसको देनी है, XYZ लिमिटेड को पेमेंट देनी है। XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड कितने में, 6 लाख, जितने में हमने उसको क्रेडिट के तौर में डेबिट कर लो। अब देखो हमने बदले में उसको क्या देना है, क्या लिखा है, 1,20,000 को बैंक ड्राफ्ट देना है, और इसको बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है शेयर से देनी है, वो भी 20% प्रीमियम वाले, 20% प्रीमियम वाले शेयर है, ठीक है। यानी कि उसको बदले में क्या देना है, टू बैंक ड्राफ्ट, टू बैंक कितना है, 1,20,000 का, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये देखो, अब हमने क्या निकालना है, पहले नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, बैलेंस ऑफ पीसी ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। और बैलेंस ऑफ पीसी ड्यू कितना है, ये देखो, कंपनी ने 6 लाख लेना था, जिसमें से 1,20,000 का ड्राफ्ट चला गया, और बाकी कितना बचा, 4,80,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या है, 10 रुपए के 10 प्लस 20% प्रीमियम, ये इशू प्राइस है। यानी कि 20% प्रीमियम और 10 रुपए कितना आएगा, 2 रुपए, ये कितना आएगा, 12 रुपए, और ये कितने आ गए, 40,000। यानी कि 40,000 शेयर बदले में इशू करेगी कंपनी। यहाँ पर क्या आएगा, 40,000 इंटू 10, 40,000 इंटू 2, यह आएगा 4,80,000, ठीक है। और इसमें वो क्या करेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डिस्चार्जिंग ऑफ पीसी, डिस्चार्जिंग ऑफ पीसी ड्यू by issuing a check and remaining amount by issuing of कितने शेयर निकले हैं, 40,000 इक्विटी शेयर्स एट 10% प्रीमियम। ये ना नरेशन जो है ना, इसमें स्पेशल लिखना बनता है। तो ये 40,000 कहाँ से आया, 40,000 कहाँ से आया, ये भी लिखना बनता है कि जो एग्जामिनर है वो प्रॉपर उसके हमने कोई भी उसको ये नहीं छोड़ना कि मार्क्स डिडक्ट करने के लिए कुछ भी छोड़ना, हमने जो डिटेल में ऐसे लिखना है, ठीक है। अब ये देखो हमारा सिंगल सिंगल जो हमने कर लिया, ठीक है। आई होप सो इसको आप बिल्कुल समझ आ चुका होगा, ठीक है। जस्ट अगला क्वेश्चन करने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इश्यू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर एंड टू द अंडरराइटर, ठीक है। इट इज माइनर टॉपिक। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए प्रमोटर क्या और अंडरराइटर क्या होता है। व्हाट इज प्रमोटर, हु इज प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है, जो सबसे पहले इनिशिएट करता है, ऐसा आइडिया माइंड में कंसीव करता है कि मैंने कंपनी को बनाना, ठीक है। जैसे टाटा रतन ने नैनो के लिए सोचा था, ठीक है, टाटा नैनो के लिए सोचा था एंड टाटा रतन फॉर द इज द प्रमोटर फॉर दैट कंपनी।
अब प्रमोटर को अगर बदले में, क्योंकि प्रमोटर जो कंपनी को प्रमोट करता है मीन्स कंपनी को जितनी भी इनकॉर्पोरेशन में कंपनी की इनकॉर्पोरेशन जितनी देर कंपनी का सीईओ मीन्स से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं आ जाता उतनी देर तक जितनी ट्रांजेक्शन होती है वो सारे कौन करता है, प्रमोटर अपने बलबूते पे करता है, अपने बेस पे करता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी का भी होम भी नहीं आई, पैदा नहीं हुई। ठीक है, और कंपनी रजिस्ट्रेशन आने तक, कंपनी की सीईओ यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने तक कंपनी का जितना खर्चा होता है वो प्रमोटर कौन करता है, खुद करता है। और उसको बदले में अगर जो उसके प्रमोशन एक्टिविटीज है यानी कि जो उसके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कौन से एक्सपेंसेस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि जो कंपनी की जो कंपनी को बनने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लगते हैं। ठीक है, प्लस भी लग सकते हैं। और इनका बिटवीन कंपनी को बनने से इनकॉर्पोरेशन जो बीच में जो टाइम है उस पर जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे उसको बोलते हैं क्लीन एक्सपेंसेस। और क्लीन एक्सपेंसेस के बदले में उसको क्या देते हैं, प्रमोटर को शेयर अगर दे देते हैं तो वो हमारा शेयर टॉपिक बन जाता है इश्यू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर। ठीक है, और इसकी एंट्री क्या डलती है, इसकी एंट्री हम क्या डाल सकते हैं, या तो गुडविल या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट करके कर सकते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिटेड या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बस इसकी सिर्फ ये एंट्री याद रखनी है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखना क्या है, बीइंग इश्यू ऑफ कितना शेयर है, 80,000 शेयर है, 80,000 शेयर्स कितने वाला है, एट पार 10 रुपये मान के चल लेते हैं, चलो 100 मान लो, ना लिखा हो तो 100 मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी, ये होगा हमारा 80 लाख। ठीक है, क्या होगा, इश्यू ऑफ 80,000 शेयर्स टू प्रमोटर फॉर रेंडरिंग सर्विसेज बाय हिम एट पार। एट पार पे हमने उसको, एट पार पे होगा तो एट पार डाल देंगे, प्रीमियम पे होगा तो एसपीआर आ जाएगा, और डिस्काउंट पे तो होता नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट केस है अंडरराइटर। अंडरराइटर में क्या होता है, सबसे पहले अंडरराइटर उत्तर कौन है, कई कंपनियों के शेयर डायरेक्टली सेल नहीं होते, वो किसी कमीशन एजेंट या ब्रोकर की सहायता से सारे शेयर उसको बेच देते हैं, और उसकी ड्यूटी, इस कमीशन एजेंट इस ब्रोकर की ड्यूटी होती है कंपनी के शेयर को बेचना। ठीक है, क्या लिखा है, कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड होल इश्यू वाज अंडररिटन बाय द एक्स, यानी कि एक्स उनका क्या है, अंडरराइटर है, इसने सारी ड्यूटी रिस्पांसिबिलिटी ली है, इस सारे शेयर बेचेगा, पर उसके बदले में क्या लेगा, कमीशन ऑफ 4%। और हमारे हमेशा याद रखो जो कमीशन होती है ना, कौन सी कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, जो अंडर रिटन कमीशन होती है ना, ऑलवेज कैलकुलेटेड एट इशू प्राइस, मींस टू से अगर फेस वैल्यू पे है तो फेस वैल्यू पे, एसपीआर पे या प्रीमियम पे तो प्रीमियम पे, जो जिस रेट पे इशू है उस रेट पे हमेशा कमीशन लगती है। और वो कहता है कि एक्स 4% कमीशन लेगा सारे, कंपनी ने क्या 1 लाख के शेयर में से 80,000 शेयर तो पब्लिक को भेज दिए, सब्सक्राइब हो गए, और बाकी सारे अंडरराइटर ले लिए। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले जो पब्लिक ने शेयर, ये तो हमने जो जनरल एंट्री डालनी है सिर्फ अंडरराइटर जो इस पे डालनी है, इसके लिए पब्लिक की एंट्री तो आपको मालूम है क्या है, पब्लिक एंट्री वही डलेगी, बैंक अकाउंट एबिलिटी शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अब अंडरराइटर के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, अंडरराइटर, यहाँ पर एक्स यानी कि ये हमारा अंडरराइटर है, मींस टू से अंडरराइटर अकाउंट डेबिटेड, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू
टू शेयर कैपिटल। कितने के शेयर उस पर जा रहे हैं? 80,000 के पब्लिक को चलेगी, बाकी कितने बचे? 1 लाख में से 80,000 बाकी 20,000 के शेयर क्यों हैं? 20,000 इंटू 10 दैट इज 2 लाख। ठीक है, 2 लाख के शेयर इसको ले जाओगे। आगे सेकंड एंट्री क्या डालनी है? कमीशन की। कमीशन की कितनी है, क्या एंट्री डलेगी? उसको हमने कमीशन देनी है, तो क्या हो गया? कमीशन हमारा क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है? हमारा डेबिट। क्या करेंगे? अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडर राइटर मींस टू से हियर इज एक्स। ये है क्या? फॉर बीइंग कमीशन ड्यू। ये हमने कमीशन ड्यू कर दिया, और कमीशन कितनी बनती है? 4% ऑफ 2 लाख। 4% ऑफ 2 लाख जो इशू प्राइस है, और 2 लाख के 4% क्या हो गया? इट्स 4% ऑफ, उसने कितने शेयर बेचे हैं? होल शेयर 100। हाँ तो 1 लाख शेयर बेचे ना, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख के शेयर, 10 लाख का 4% क्या होगा? बेचे तो उसने इतनी है ना, 1 लाख के शेयर थे जिसने उसने पब्लिक को बेच दी 80,000, और बाकी उसने अपने पास रख ली। दूसरी शेयर कितनी बेची है? 1 लाख इंटू 10, 10 लाख के शेयर है, 10 लाख का 4% क्या होगा? 10 लाख का 4% क्या होगा? 40,000। यानी कि उसकी कमीशन कितनी बनती है? 40,000 जो ड्यू कर दी है। ठीक है, अब क्या करना है? सारा हो चुका काम, अब हमने इसको कमीशन देनी है, क्योंकि कमीशन देनी नहीं है, ये देखो ध्यान से। उससे हमने 2 लाख लेना है, 40,000 देना है, और बदले में वो कितना हमें देगा कंपनी को? 2 लाख माइनस 40,000, बाकी यानी कि 1,60,000 वो अपनी तरफ से देगा, तो उससे पैसा आएगा। तो क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, दैट इज यानी कि 2 लाख में से 40,000 माइनस कर दो, दैट इज 1,60,000 बीइंग सेटलमेंट मेड विद अंडर राइटर। इट्स क्लियर? ठीक है, इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इज हियर। नाउ हम अब करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर इन कंसीडरेशन अदर गैस। एक प्रॉब्लम वैसे देखेंगे, इससे आपको ये पता लगेगा कि और शेयर्स में डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, चलो आगे चलने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर द कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हम डिवेंचर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। शेयर्स और डिवेंचर में माइनस का फर्क है। चलो एक हमारी इक्वल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसी बहाने। क्या कहता है? एबीसी लिमिटेड परचेज स्टॉक। एबीसी लिमिटेड ने स्टॉक परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, फर्नीचर परचेज किया। किससे? राज लिमिटेड राज एंड कंपनी से, और उसकी लायबिलिटीज भी खरीद ली, यानी कि पूरे का पूरा बिजनेस खरीद लिया। विद पीसी परचेज कंसीडरेशन कितनी है? 4,80,000 में, और कंपनी ने बदले में उसको क्या दिया? एक बैंक ड्राफ्ट दिया 20,000 का, और 12% डिवेंचर दिए 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। ठीक है, सेम शेयर जैसा सम है, फर्क क्या है? यहाँ पर 12% डिवेंचर आ गया, और वहां पर क्या लिखा था? इश्यू ऑफ शेयर, या इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। ठीक है, तो डिवेंचर आ गया, सिर्फ इसी का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, और सोल्यूशन का खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब करने क्या है? वैसे जैसे उसने किया था। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम में सबसे पहले सारे क्या करना है? इंडिविजुअल एसेट को डेबिट करना है और इंडिविजुअल लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। चलो देखो करते हैं। सबसे पहले क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 2,10,000, ये होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 1,90,000, ये हो गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड दैट इज 70,000। ठीक है,
टू लायबिलिटीज कितनी है, टू लायबिलिटीज कितनी है 70,000 की, ठीक है। टू वेंडर कौन है, राजन कंपनी एज ए वेंडर, जिसकी कंपनी को हमने खरीदा है, ठीक है। ये बुक्स इसकी बना रहे हैं, इसका जनरल है बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी, ठीक है। आगे देखो, और कितने का पीसी, कितने का कॉन्ट्रैक्ट, कितने का है 4,80,000 का, 4,80,000 का। अब ऐसे ही करना है, हमने बिजनेस की वर्थ निकालनी है, और बिजनेस की वर्थ निकालने के लिए क्या करते हैं, बिजनेस की वर्थ निकालने के होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स में लायबिलिटी माइनस कर दो और हमारे क्या आ जाता है, बिजनेस की वर्थ में आ जाती है। ये वाले 2,10,000 और 4,70,000 से 70 गया, ये हमारा बिजनेस की वर्थ बन गई 4 लाख। 4 लाख की वर्थ है, कंपनी उसको 4,80,000 दे रही है, यानी कि उस कंपनी की गुडविल होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और जो वैल्यू होगी वो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1900 से। सीधी बात है, हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को कंपेयर करना है। अगर हमारी डेबिट साइड छोटी हो तो गुडविल आती है, क्रेडिट साइड छोटी हो तो कैपिटल रिजर्व आता है, अगर ऐसे समय नहीं लगता, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट साइड को कंपेयर करो, दोनों के टोटल को कंपेयर करो। अगर हमारा डेबिट साइड छोटी आती है गुडविल आएगी, अगर क्रेडिट साइड हमारी शॉर्ट आएगी तो एग्जाम्पल क्या है, कैपिटल रिजर्व। जैसे हमारे लास्ट एग्जाम्पल की थी शेयर कैपिटल रिजर्व, आपका कैपिटल रिजर्व था, तो ये हमारा गुडविल वाला केस है, ठीक है। और कितना गैप है, 70 गया, 4,80 में 4 गया, ये हमारा 80,000 की गुडविल आ गई, ठीक है। और क्या, इन द लिविंग नरेशन बीइंग बिजनेस परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू, ठीक है। आगे क्या करेंगे, जितने में हमने वेंडर को क्रेडिट किया उतने में डेबिट करो और पेमेंट देते हैं। राज कंपनी अकाउंट डेबिटेड 4,80,000, उसको क्या दे रहे हैं, देखो बयान से 2, उसको 20,000 का तो बैंक ड्राफ्ट दिया, टू बैंक 20,000, टू क्या बदले में क्या दे रहे हैं, 12% डिबेंचर। ये 12% डिबेंचर हमने एज इट इज लिखना, 12% डिबेंचर। ये 12% क्या होता है, ये कूपन रेट होता है, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड टू द डिबेंचर एनुअली। जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिबेंचर हमने कंपनी ने पे करना होता है हमेशा, उसको एज ए कूपन रेट डिबेंचर की फेस के आगे लिखते हैं, नाम के आगे लिखते हैं, दैट इज कूपन रेट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी गिवन टू द डिबेंचर होल्डर एनुअली। एंड ये 12% डिबेंचर देंगे, और कौन से है, प्रीमियम वाले, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और इसके लिए हमें क्या करना है, पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर के लिए वही बैलेंस ऑफ पीसी ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। बैलेंस कितना है, 4,80,000 में से 20,000 गया, कितना बचा, 4,60,000, 4,80,000 में से 20,000 माइनस कर दो, बाकी क्या बचा, 4,80,000, 4,60,000, 4,60,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या है, क्या इशू प्राइस है, 15% प्रीमियम, यानी कि क्या आएगा 100 प्लस 15%, दैट इज 15%, ठीक है। और ये 115 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया, इट्स 4,000 डिबेंचर्स, 4,000 डिबेंचर्स, यानी कि इसको 4,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, 4,000 इंटू 100 एंड 4,000 इंटू 15, ये बनेगा 4 लाख और 60,000, ठीक है। और इसमें नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डिस्चार्जिंग ऑफ पीसी, पीसी को हम पे करने जा रहे हैं, कैसे, बाय इशूइंग और बैंक ड्राफ्ट एंड
12% debentures at premium of 15%. ठीक है, इट इज द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। सिर्फ इसमें देखो ध्यान से फर्क क्या है, सिर्फ शेयर और डिवेंचर में सिर्फ यहाँ पर फर्क आना है। यहाँ पर मैं वहां पर मैंने लिखा था इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पर क्या आना है, डिवेंचर का नाम 12% डिवेंचर। कई बार क्या होता है, कई प्रॉब्लम में हमें जैसे ही 4,80,000 दे रखा है ना, हमें 4,80,000 दिया ही नहीं होता, यानी कि परचेज कंसिडरेशन देनी होती है, तब हमने परचेज कंसिडरेशन, यानी कि ये नोट कर लो, इन केस पीसी नोट गिवन, इन केस पीसी नोट गिवन, अगर हमें परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट दी नहीं दी, जैसे यहाँ पर 4,80,000 है, नहीं दी, अगर मान लो कि ये हमारे इस समय नहीं देती, इस प्रॉब्लम नहीं देती, तो हमने कैसे परचेज कंसिडरेशन निकालनी थी, देन पीसी इज इक्वल टू बिजनेस वर्थ, बिजनेस की वर्थ, पीसी क्या होगी, जो बिजनेस की वर्थ है, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज मींस टू से इनके एसेट और लायबिलिटी को माइनस कर दो, यानी कि फिर हमारा आएगा, फिर हमारा ये नहीं आएगा, यानी कि 4,70,000 में 70,000 माइनस कर दो, और यहाँ पर आ जाना था 4 लाख। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पर 4 लाख आया ना, और बाकी हम एवरेज कंटिन्यू करना है, वो हमने तब करना है जब हमें पीसी ना दे रखी हो। तो हमने पीसी कैसे निकालनी है, पीसी जो बिजनेस की वर्थ है, और बिजनेस की वर्थ कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कि एसेट्स को लायबिलिटी से माइनस कर दो, दैट विल बी योर पीसी। ठीक है, इन दैट व्हेन पीसी इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स नाउ। अब हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन ओके बाय, सी यू।